السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان کی انگوٹھی اور شیطان جن۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جنگجو شخص تھے، خشکی اور سمندر میں جنگوں لڑا کرتے تھے۔ انہوں نے کسی بحری جنجیرے کے ایک بادشاہ کے بارے میں سنا تو آپ علیہ السلام انسانوں جنات کے لشکر کے ساتھ ہوا پر سوار ہو کر اس جنجیرے پر اترے اور وہاں لڑائی میں جنجیرے کا بادشاہ مارا گیا اور باقی خاندان والے قید ہو گئے۔ ان میں ایک لڑکی بھی تھی جو حسن و جمال میں بے مثال تھی، اور یہ لڑکی مقتول بادشاہ کی بیٹی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے لیے منتخب فرما لیا۔ آپ علیہ السلام اس کے پاس بہ فرحت محسوس کرتے جو کسی کے یہاں نہ پاتے، اور اپنی تمام بیویوں پر اسے فوقیت دیتے تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام اس کے پاس آئے تو وہ کہنے لگی کہ مجھے میرے والد، ان کی بادشاہت اور ہونے والا قصہ یاد آ رہا ہے اور میں بہت غمگین ہوں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنے جنات کو حکم دیں کہ وہ میرے والد کی صورت کا ایک مجسمہ بنا دیں۔ میں اپنے گھر میں اسے رکھوں گی اور صبح شام انہیں دیکھوں گی۔ اس طرح امید ہے کہ میرا غم دور ہو جائے اور میں اسے بھلا دوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سخرول مارد نامی جن کو اس کے والد کی حیات پر مجسمہ بنا دینے کا حکم دیا، جو اس کے گھر کے ایک کونے میں رکھ دیا گیا۔ وہ اس کے والد کے اس قدر مشابہ تھا کہ صرف اس میں روح نہ تھی، باقی اس کی شکل انسانی جسم کی طرح تھی۔ اس عورت نے اسے مزین کیا، اسے کپڑے پہنائے اور اسے بالکل اپنے والد کی حیات اور لباس کے مطابق کر دیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے گھر سے نکلتے تو وہ ہر روز صبح شام اپنی باندیوں کے ساتھ اس مجسمے کو سجدہ کرتی، اسے خوشبو لگاتی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا علم نہ ہو سکا، حتیٰ کہ اس طرح 40 دن گزر گئے اور بات محل سے نکل کر لوگوں تک پہنچ گئی، اور آصف بن برکھیا کو بھی اس کا علم ہو گیا۔ آصف سلیمان علیہ السلام کے دوست تھے۔ یہ فوراً سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے نبی، میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کی اجازت سے لوگوں کو گزشتہ پچھلا انبیاء کے حالات سناؤں اور اپنے علم کے مطابق ان کی مدح تعریف کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ آصف نے ان کے سامنے تمام انبیاء کا ذکر کیا اور ان کی مدح و ثنا کی، ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا تو اس نے سلیمان علیہ السلام کی نوجوانی اور بچپن کا ذکر کیا، ان کی فضیلت اور منقبت بیان کی، اور نوجوانی سے آگے کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ناراض ہو گئے اور بعد میں انہیں بلایا اور پوچھا کہ اے آصف، تو نے گزشتہ انبیاء کے حالات و واقعات کا ذکر کیا ہے اور ان کی مدح و ثنا کی اور ان کا ہر زمانہ بیان کیا، اور میری باری پر تم نے محض میری کم عمر کے واقعات اور ان کی فضیلت بیان کی، اور واقعہ احوال پر تو چپ رہے ہیں، یعنی میری جوانی کے واقعات اور نبوت کے احوال۔ ایسی کیا بات ہے جو میری عمر کے حصے میں مجھ سے سرزد ہوئی؟ تو اس نے کہا، وہ یہ ہے کہ تمہارے گھر میں 40 دن سے غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اور وہ بھی صرف تمہاری بیوی کی خواہش پر۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا کہ میرے گھر میں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، آپ کے گھر میں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میں سمجھا کہ تم نے میری نبوت کے احوال سے اس خبر کی وجہ سے بیان نہیں کیے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے گھر واپس آئے اور اس بت کو توڑ دیا۔ عورت اور اس کے ساتھ شریف لوگوں کی خوب خبر لی۔ پھر آپ علیہ السلام نے صاف کپڑے منگوا کر جیب تن فرمائے اور پھر بیابان میں نکل گئے اور راکھ مٹی وغیرہ پر بیٹھ کر توبہ کے لیے متوجہ ہوئے اور اس مٹی پر لوٹنے لگے۔ تجلیل اور تفروح کے ساتھ روتے اور استغفار کرتے رہے اور کہتے جاتے، اے میرے رب، یہ تیرا کیسا امتحان ہے کہ آل داؤد کے گھر میں غیر اللہ کی عبادت ہوتی رہی، اور تیرے غیر کی عبادت ان کے گھر اور اہل خانہ میں گھس گئے۔ آپ برابر اسی طرح کہتے رہے یہاں تک کہ شام ہو گئی تو آپ علیہ السلام گھر لوٹ آئے۔ آپ علیہ السلام کی ایک باندی تھی جس کا نام امینہ تھا۔
आप अलैहिस्सलाम का मामूल था कि आप जब बैतुल खला जाते या अपनी बीवियों के यहाँ मसरूफ होते तो आप अलैहिस्सलाम अपनी अंगूठी को उसके पास रखवा देते और आप अलैहिस्सलाम अपनी अंगूठी को सिवाय पाक हालत के नहीं छूते थे। और अल्लाह ताला ने बादशाहत का राज उस अंगूठी में पोशीदा कर रखा था। वह कहते हैं कि एक दिन आप अलैहिस्सलाम वुजू के इरादे से तशरीफ लाए तो अपनी अंगूठी उस बांदी के पास रखवा दी और सखरूद मारिद जिन आया और आप अलैहिस्सलाम से पहले वजू खाने में दाखिल हो गया। आप अलैहिस्सलाम कजाए हाजत के लिए तशरीफ ले गए और यह शैतान आप अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत बनाकर अपनी दाढ़ी झाड़ता हुआ बाहर निकल आया। उसमें और सुलेमान अलैहिस्सलाम में सकलन कोई फर्क महसूस ना होता था। उसने कहा, अमीना मेरी अंगूठी लाओ। उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम समझकर उनकी अंगूठी उसे दे दी। वो अंगूठी लेकर आपके तख्त पर जा बैठा और जिन्नातो इंसान उसके ताबे हो गए। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी जरूरत से फारिग होकर बाहर निकले और आप अलैहिस्सलाम ने कहा, अमीना मेरी अंगूठी लाओ। उसने कहा, आप कौन हैं? आप अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम हूँ। उस वक्त आपकी हालत बदली हुई और रौनक गायब थी। अमीना बोली, तुम झूठ बोलते हो, सुलेमान अपनी अंगूठी ले जा चुके हैं और अपने तख्त पर बैठे हुए हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम समझ गए कि वो अपनी गलती की पकड़ में आ गए हैं। हसन कहते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी जान के खौफ से वहां से निकल पड़े, बगैर जूती और टोपी के सिर्फ कुर्ता और तहवन पहना हुआ था। आप अलैहिस्सलाम रास्ते पर बने एक घर के पास से गुजरे। उस वक्त भूख प्यास और गर्मी ने आपका बुरा हाल कर रखा था। आप अलैहिस्सलाम ने उस घर का दरवाजा खटखटाया। एक औरत निकली। उसने पूछा, क्या जरूरत है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक घड़ी की मेहमानी। आप देख रही हैं कि गर्मी की शिद्दत से मेरा क्या हाल है। मेरे पांव जल रहे हैं, भूख और प्यास इंतहा से ज्यादा है। उस औरत ने कहा, इस वक्त मेरा शौहर घर में नहीं है और मैं किसी गैर महरम शख्स को अपने घर में नहीं बिठा सकती। बाग में चले जाओ, उसमें पानी और फल मौजूद है। फल खाओ और ठंडक हासिल करो। जब मेरा शौहर आएगा तो मैं आपकी मेहमानी की इजाजत ले लूंगी। अगर इजाजत दे दी तो ठीक, नहीं दी तो तुम अल्लाह का दिया रिज्क तो खा चुके होगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बाग में दाखिल हुए और गुस्ल करके आप सो गए। वहाँ मक्खियाँ आपको तंग करने लगी कि अचानक एक काला सांप आया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आकर वहाँ से मक्खियां भगाने लगा। इतने में औरत का शौहर भी आ गया और औरत ने उस मेहमान के बारे में बताया। वह उनके पीछे बाग में आया तो सांप और उसके काम को देखा तो अपनी बीवी को बुलाकर उसे भी यह तमाशा दिखाया और बोला, यह हैरत अंगेज मंजर देखो। उसने भी देखा। फिर इन दोनों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेदार किया और कहा, ऐ नौजवान, यह हमारा घर है और हमें कोई तंगी नहीं है कि तुमसे अजीज आ जाए और ये मेरी बेटी है, मैंने इसका निकाह तुझसे कर दिया है। यह लड़की अपने जमाने की खूबसूरत तरीन औरतों में से थी। आप अलैहिस्सलाम ने उससे शादी कर ली और उनके यहाँ 3 दिन कयाम किया। फिर उन्हें फरमाया कि मैं मैसत की तलब में जाना चाहता हूँ ताकि अपने और अपनी बीवी के लिए कुछ कमा सकूं। यह कहकर आप अलैहिस्सलाम शिकारियों के पास तशरीफ ले गए और उनसे कहा, क्या तुम्हें किसी मददगार की जरूरत है जिसकी मेहनत में थोड़ा बहुत हिस्सा दे दिया करे? तो उन्होंने कहा, आजकल हमारा शिकार बन है और कोई बचत नहीं है जो तुम्हें दे सके। आप अलैहिस्सलाम दूसरे के पास आए और उनसे भी यही कहा तो उन्होंने रजामंदी जाहिर की और कहा, खुशी के साथ आइए और जो हमारे साथ होगा उसमें आपको हिस्सा देंगे। आप अलैहिस्सलाम उनके पास ठहर गए और शिकार लेकर घर चले जाते। उन्हीं दिनों लोगों ने उस जाली नकली सुलेमान की हुकूमत और उसके कामों को बुरा समझना शुरू कर दिया। जब उस खबीस ने यह देखा कि लोग मुतनफिर हो रहे हैं तो यह अंगूठी समेत भाग गया और अंगूठी दरिया में फेंक दी। हसन कहते हैं कि 40 दिन अंगूठी उस शैतान के पास रही। मरवी है कि वह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी पर बैठा था तो उसके करीब सारे जिन्नातों इंसान जमा हो गए। वो हर चीज का मालिक बन बैठा मगर आपकी और औरतों पर मुसल्लम ना हो सका। और उन दिनों हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम लोगों से मेहमानी का मुताबला कर रहे थे
कि मैं सुलेमान बिन दाऊद हूँ, मुझे खाना खिलाओ, तो लोग उन्हें वापस कर देते और कहते, क्या तेरी ये हालत काफ़ी नहीं है जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर झूठ बोलता है? और सुलेमान अलैहिस्सलाम तो अपनी बादशाहत पर विराजमान है। यहाँ तक कि सुलेमान अलैहिस्सलाम थक गए और मुसीबत शदीद हो गई। इसी हाल में 40 दिन गुजर गए तो आसिफ ने कहा कि ऐ बनी इसराइल की कौम, क्या तुम दाऊद के बेटे के लिए सीधे काम देखते हो जो कुछ मैं देख रहा हूँ? लोगों ने कहा, हाँ। तो आसिफ शैतान के पीछे लग गया तो वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ और अंगूठी दरिया में फेंक दी। एक बार मछली ने उसे निगल लिया और अंगूठी की रोशनी से उसका पेट रोशन हो गया। वह पानी की बहाव पर चल पड़ी और उन मछेरियों शिकारियों के जाल में दाखिल हो गई जिनके साथ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। जब शाम को मछलियों की तकसीम हुई तो ये बाम मछली भी निकल आई, तो मछेरों ने यह मछली हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हिस्से में डाल दी। आप उसे घर ले आए और मछली पकाने का हुक्म दिया। जब आपकी बीवी ने उसका पेट चाक किया तो उसमें से अंगूठी निकल आई और उसकी रोशनी से घर रोशन हो गया। तो उसने फौरन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बुलवाया और उन्हें अंगूठी दिखाई। आप अलैहिस्सलाम वह अंगूठी पहन ली और सजदे में गिर गए और कहा, ऐ मेरे खुदा, तेरे इस कदीम इम्तिहान पर तेरी हम्दो सताइश है और आले दाऊद से अच्छे बर्ताव पर हमद है। मेरे खुदा, तूने आले दाऊद की इब्तिदा नेमतों से की है और उन्हें किताब और नबूवत अता की। तेरा शुक्र है, तेरी रहमतें जाहिर हो गई, छिपती नहीं और उनका शुमार नहीं। बस तेरा शुक्र है ऐ मेरे खुदा, तूने मेरी खता के बाइस मुझे छोड़ा नहीं। तेरी शुक्र है और मेरी खताओं पर मुझे रुसवा नहीं किया। तेरा शुक्र है मेरे खुदा, तूने मेरी लग्जिश के बाइस मुझे छोड़ा नहीं। तेरा शुक्र है ऐ मेरे खुदा, अपनी नेमतें मुझ पर तमाम कर दे। जो कुछ हुआ उसे माफ़ कर दे और मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा कि मेरे बाद किसी को ऐसा ना मिले। अकरमा से मरवी है कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से छिनी तो उसने उनके घर वालों को वहां से उठा लिया था और उसी ममलकत के वस्त बीच में पहुंचा दिया था और सुलेमान अलैहिस्सलाम उस अंगूठी को अभी तक पहन ना सके। अल्लाह ताला ने उनकी बादशाहत लौटा दी। क्या दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।